Assalamu alaikum students. So we were talking about the international finance, the most important topics, that how international business can be exposed to different types of exposures, where we discussed that there is a possibility that the international business is focusing or is exposed towards the transaction exposure कि जहाँ पे cash inflows या cash outflows effect हो सकते हैं किसी भी movement के जो कि currency exchange rate movement की वजह से हो. Transaction exposure के लिए there were three important things for which it was noticed that you should know that what type of exposure you are having if it is transaction exposure. So you should know कि उसमें to what extent the international business or your company is facing transaction exposure. So one thing that you must know कि किस हद तक आपकी कंपनी exposed है toward transaction exposure. That means कि किस हद तक international आपके जो international cash inflows या cash outflows होंगे वो effect हो सकते हैं due to exchange rate movements. So one thing जब आपको डिग्री का पता लग जाए कि किस डिग्री पे या किस नौयत का या किस extent से आपका business expose हो रहा है toward exchange rate movements, then you have to decide whether it is at a large scale or a small scale. तो जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपके जो कैश इनफ्लोज हैं उन पे जो इम्पैक्ट आ रहा है वो वेदर लार्ज स्केल में आ रहा है या स्मॉल स्केल में आ रहा है, देन यू हैव टू डिसाइड कि ओके फाइन, नाउ यू हैव टू गो फॉर दी हेजिंग टेक्निक्स. तो अगर तो आपकी कंपनी ट्रांजैक्शन एक्सपोजर के साथ को फेस कर रही है, कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज में वेरिएशन आ रही है ड्यू टू एक्सचेंज रेट वेरिएशन, देन यू हैव टू सी कि आपको उसको हेज किस तरह से करना है. अगर आप ये डिसाइड कर लें कि येस बिकॉज द एक्सपोजर इज एट लार्ज नेचर, दैट इट इज बिग इन साइज एंड यू हैव टू basically hedge your exposure, in that case that is the second point where you have to think कि आपने इसको hedge करना है यानी इसको avoid करना है या नहीं करना. और उसको avoid करने के लिए different techniques हो सकती हैं which are called your hedging techniques. So do you have to consider those hedging techniques or not? So first you have to see to what extent your company is facing the transaction exposure. Second thing, you have to see whether you have to hedge it or not. Finally you have to see कि अगर आपने ट्रांजैक्शन एक्सपोजर को हेज करना है तो किस वे में आप उसको हेज कर सकते हैं. So finally when you have decided कि आपने hedging करनी है, then there are different options where we had discussed the forward hedging technique and the future hedging technique and the money market hedging. So you have to see कि आप इसको किस तरह से उस exposure को hedge कर सकते हैं. अगर तो आपके amounts बहुत large amounts हैं, then you can go for the forward contracts, and if they are not that much large, then you can go for the future contracts. And if it is for the small time period, like for example money market की जब हम बात करते हैं तो वो short term period से related है, so you can go for the strategies where you can implement your hedging techniques on money market criterias. Now finally when you hedge your any type of exposure or any type of occurring which is going on in the market, then you have to see if the real cost of hedging is negative. अगर तो आपकी रियल कॉस्ट जो हेजिंग की आ रही है वो नेगेटिव है, दैट मीन्स कि जो आप हेजिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं उसमें अगर आपके पास आंसर्स नेगेटिव में आ रहे हैं, देन हेजिंग इज मोर फेवरेबल देन नॉट हेजिंग. सो इफ यू आर कंपेयरिंग being a financial manager in a multinational company, that whether you have to go for hedging or you should avoid hedging. तो आपको रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग पता होनी चाहिए, जो कि हमने पहले भी डिस्कस की थी कि आपकी रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग क्या होती है, जिसमें से आप डिफरेंस निकाल लेते हैं हेजिंग और नॉट हेजिंग का. अगर तो आपके पास आंसर उसमें नेगेटिव में आ रहा है, देन इट मीन्स दैट यू शुड गो फॉर हेजिंग. सो हेजिंग फेवरेबल है फॉर द मल्टीनेशनल कंपनी. ऑन द अदर हैंड इफ यू विल नॉट गो फॉर द हेजिंग, इफ योर आंसर इज इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव, तो जब आप ये डिसाइड करते हैं कि वेदर यू शुड हेज और नॉट हेज, so you have to go for the real cost of hedging, or real cost of hedging must be negative in a way where you should decide whether you should go for hedging or not. Money market hedging क्या है कि आपने जिस तरह आई हैव टोल्ड यू कि आपको मनी मार्केट हेजिंग करनी है, जो कि आपका एक क्राइटेरिया है टू अवॉइड ट्रांजैक्शन कॉस्ट ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. सो अगर आपने मनी मार्केट हेजिंग करनी है, सो फॉर पेबल्स यू शुड बोरो इन होम करेंसी. अगर तो आपको पेबल्स के लिए हेजिंग करनी है, सो व्हाट यू कैन डू इज कि आपने फॉर एग्जांपल आपने कुछ अमाउंट्स पे करनी है एंड यू आर थिंकिंग कि इन फ्यूचर आपके जो एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा होंगे, एंड ड्यू टू दैट योर पेबल्स वुड बी इफेक्टेड.
What will happen in that case? आपके पेबल्स जब इफेक्ट होंगे, यू विल गो फॉर द डिसीजन वेदर यू शुड हेज और नॉट हेज. इफ यू विल डिसाइड कि यस यू नीड टू हेज फॉर दिस टाइप ऑफ एक्सपोजर, देन यू शुड नीड टू सी कि मनी मार्केट हेजिंग जो हो रही है या मनी मार्केट जो आपके पेबल्स हैं उनके लिए आपने क्या करना है. यू हैव टू गो फॉर बोरोइंग इन होम करेंसी और इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी. तो आप बोरोइंग होम करेंसी में करें, आप डोमेस्टिक करेंसी में बोरोइंग्स कर लें, और जब आप बोरोइंग्स कर लेते हैं तो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉरेन करेंसी में करें. एंड वी हैव ऑलरेडी डन वन न्यूमेरिकल ऑन दिस वे कि आप किस तरह से बोरोइंग करके फर्दर फ्यूचर में आप किसी और कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पे आपको इंटरेस्ट रेट्स अच्छे ऑफर हो रहे हैं. और जब आपकी इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जाए आफ्टर 90 डेज पीरियड या 6 मंथ्स पीरियड, देन यू कैन कम बैक और आप उसको क्या कर सकते हैं कि आप उस इन्वेस्टमेंट को दोबारा से यूटिलाइज कर सकते हैं, वापस उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डोमेस्टिक अमाउंट्स में. एंड देन यू कैन सी द डिफरेंस कि आपने कितने गेन्स अचीव किए हैं. तो अगर तो आपका एक्सपोजर जो आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है एंड यू हैव डिसाइडेड टू गो फॉर द मनी मार्केट हेजिंग, देन व्हाट यू कैन डू इज कि फॉर पेबल्स व्हाट यू कैन डू इज कि आप डोमेस्टिक करेंसी में आप बोरोइंग करें, उसको कन्वर्ट करें इन फॉरेन करेंसी, उस फॉरेन करेंसी में जो कंट्री आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे कर सके ऑन देयर बैंक डिपॉजिट. तो अगर आपने पाक रुपी में फॉर एग्जांपल बोरोइंग की है और आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इन पाउंड्स बिकॉज आपको से फॉर एग्जांपल यूके के जो बैंक डिपॉजिट्स हैं वो ज्यादा ऑफर कर रहे हैं रिटर्न या सेविंग्स के ऊपर उनके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो ज्यादा ऑफर हो रहे हैं, व्हाट यू गोना डू इज कि यू विल बोरो इन पाक रुपी एंड इन्वेस्ट इट इन पाउंड्स, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा ऑफर हो रहा है. बाय द एंड ऑफ द मेच्योरिटी आप उन पाउंड से जितना भी आपको प्रॉफिट अचीव हो रहा है वो एड अप हो जाएगा उन पाउंड्स के साथ, एंड देन यू विल कन्वर्ट देम बैक इन पाक रुपीज. पाक रुपीज में कन्वर्ट करने के बाद आप डिफरेंस देख लेंगे कि आपने इस हेजिंग के थ्रू कितना अपने खुद को या अपने बिजनेस को अवॉइड कराया है फॉर द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. नाउ दिस इज ओनली फॉर द पेबल्स कि आप डोमेस्टिक मनी में बोरोइंग करें और किसी फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट कर दें. ऑन द अदर हैंड फॉर रिसीवेबल्स व्हाट यू कैन डू इज के बोरो इन फॉरेन करेंसी. तो अगर तो आपको एक्सपोजर है, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर फील हो रहा है इन टर्म्स ऑफ रिसीवेबल्स कि आपको फ्यूचर में कुछ अमाउंट्स रिसीव होने हैं या ज्यादा अमाउंट्स रिसीव होने हैं एंड यू वांट टू हेज अगेंस्ट दैट, व्हाट यू कैन डू इज इफ यू हैव डिसाइडेड कि आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है और आप मनी मार्केट हेजिंग यूज करना चाह रहे हैं, एंड देन फॉर रिसीवेबल यू आर डिसाइडिंग कि हाँ जी रिसीवेबल्स के ऊपर आपको हेजिंग करनी है, देन बोरो इन फॉरेन करेंसी. तो आप फॉरेन करेंसी में बोरो करें, उस अमाउंट को कन्वर्ट करें इन योर डोमेस्टिक करेंसी, इन्वेस्ट करें अपने कंट्री में और मैच्योर होने के बाद उसको वापस कन्वर्ट कर दें इन फॉरेन करेंसी. सो दैट इज द वे बाय विच यू कैन हेज अगेंस्ट द फॉर द रिसीवेबल्स. सो अगर आपकी ट्रांजैक्शन एक्सपोजर हो रहा है, सो दीज आर द टू क्राइटेरिया इन मनी मार्केट हेजिंग कि आप किस तरह से हेजिंग करेंगे कि या तो आप बोरोइंग करेंगे इन होम करेंसी या फिर आप बोरोइंग करेंगे इन फॉरेन करेंसी. Now there is also another option or another choice on which you can go जब आप hedging कर रहे होते हैं. As I have said कि आप या तो forward contract sign कर सकते हैं या future contract sign कर सकते हैं या फिर आप money market hedging कर सकते हैं. Apart from all this, you can also go for currency option hedge. अब आप ये सोच लें कि जब आपके पास इतने बहुत सारे चॉइसेस अवेलेबल हैं, सो व्हाई वन शुड गो फॉर करेंसी ऑप्शन हेज. दैट इज बिकॉज यू माइट डिसाइड कि आपका करेंसी ऑप्शन हेज है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप ऑप्शन है, इसमें बेसिकली आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, नॉट एग्जैक्टली कि आपके पास फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आपने हर सूरत एक्सरसाइज करना है, बल्कि आप ये कर सकते हैं कि करेंसी ऑप्शन हेज में आपके पास ऑप्शन आ जाता है दैट यू कैन एक्सरसाइज ऑन दिस डे बट इट्स नॉट कंपल्सरी. सो दैट मीन्स कि जब आप करेंसी ऑप्शन के थ्रू हेज करते हैं, सो इट इज अप टू यू के फ्यूचर टाइम पीरियड में. और हम दूसरी चीज ये कि आप करेंसी ऑप्शन हेज कब यूज करते हैं, व्हेन यू आर अनश्योर और अनसर्टेन कि वाकई ये सब कुछ होगा या नहीं होगा. से फॉर एग्जाम्पल आप क्योंकि करेंसी ऑप्शंस की बात करें तो करेंसी से रिलेटेड आपके माइंड में कि वेदर you can see different types of fluctuation in currency or not, or whether there is a possibility of currency fluctuation or not. In case if you feel कि हाँ जी आपको currency fluctuations आ सकती हैं, what will happen in that case? Then you can take these options.
अब ऑप्शंस में क्योंकि आपके पास ऑप्शंस आता है, आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं है, दैट मीन्स कि आप बाय द एंड ऑफ द पीरियड इट इज इन योर हैंड कि आपने अगर कोई ऑप्शंस अवेल किए हुए हैं या आपने कोई साइन किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ऑप्शंस, सो दैट मीन्स वेदर यू वांट टू एक्सरसाइज इट और नॉट, इट इज कंप्लीटली अप टू यू। तो अगर आपने देखा बाय द मैच्योरिटी टाइम पीरियड कि हाँ करेंसी फ्लक्चुएशन इतनी हुई और एक्सरसाइज करने से आपको बेनिफिट हो सकता है, देन इट इज फाइन, यू कैन गो फॉर द करेंसी ऑप्शन हेज। On the other hand, if you feel that no, you don't feel like that you should go for any option of going for the currency hedge, then what you can do is you can withdraw yourself from that hedging methodology or method. That is, when you are buying your currency option hedge or when you are selling currency option hedge, you have the option, not the obligation. So a currency option hedge is also suitable for those people who are basically risk averse or those managers or those businesses who are risk averse and who doesn't want to take any type of risk at all. In that case, basically they are trying to hedge themselves against any type of loss, and what they can do is they can go for the currency option hedging. और उसमें वो क्या कर लेंगे कि बेसिकली दे विल डिसाइड एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि वेदर इट इज इन अ बेनिफिट, वेदर दे आर इन अ पोजीशन वेयर दे कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। अब उसमें भी दो टाइप के आपके ऑप्शंस आ जाते हैं, एक आपका पुट ऑप्शन आ जाता है और एक आपका कॉल ऑप्शन आ जाता है। अगर आपने बाइंग करनी है सो यू शुड गो फॉर द पुट ऑप्शन, अगर आपने सेलिंग करनी है सो यू शुड गो फॉर द कॉल ऑप्शन। सो आप वेदर यू आर गोइंग टू एक्सरसाइज द कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, इट इज इन योर हैंड बिकॉज यू हैव द अथॉरिटी कि आप अपने बेनिफिट या अपनी ईज के अकॉर्डिंगली आप उसको एक्सरसाइज करें। सो दीज आर ऑल 4 टेक्निक्स फॉर द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कि जब आपकी कंपनी को ट्रांजैक्शन एक्सपोजर हो रहा है, जब वो ये देख लेते हैं कि हाँ जी आपकी कंपनी एक्सपोज्ड है टुवर्ड्स कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज एंड इट विल चेंज ड्यू टू द करेंसी फ्लक्चुएशन, देन दे कैन गो फॉर एनी टाइप ऑफ टेक्निक और एनी टाइप ऑफ मेथड फॉर हेजिंग इफ दे डिसाइड कि येस दे हैव टू गो फॉर द हेजिंग। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व है देन यू विल गो फॉर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आपके बहुत ह्यूज अमाउंट इंट्रोड्यूस नहीं किए हुए आपने बिजनेस में, देन यू विल गो फॉर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आपने मनी मार्केट हेजिंग करनी है, सो वी हैव डिस्कस्ड द क्राइटेरिया कि वेदर यू कैन गो फॉर द बोरोइंग इन योर डोमेस्टिक करेंसी और यू कैन गो फॉर द बोरोइंग इन योर फॉरेन करेंसी। फाइनली यू कैन ऑल्सो गो फॉर द मल्टीनेशनल कंपनीज हु कैन बेसिकली गो फॉर करेंसी ऑप्शन हेज, जहां पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है, एक हेजिंग का ऑप्शन है कि वेदर इफ यू गेट एनी टाइप ऑफ बेनिफिट देन येस यू कैन गो फॉर द हेजिंग, इफ यू डोंट गेट एनी बेनिफिट देन you can avoid it. Finally, we also discussed the multinational policies to hedge, and we also discussed that it depends on the multinational criteria how much they are risk lovers or how much they are risk averse. अगर तो कोई कंपनी बहुत ज़्यादा risk averse है then they will try to avoid for going for any type of risk, taking risks. तो risk averse category वो होती है जो कि risks को avoid करते हैं. So any business who is trying to avoid for the risk, they will love to go for the hedging criteria because they are trying to avoid the risks. अगर ऑन दी अदर हैंड योर कंपनी मैनेजमेंट या फिर आपकी कंपनी खुद से बहुत रिस्क लवर है, व्हाट विल हैपन इन दैट केस, दे विल गो फॉर दी पॉलिसीज वेयर दे विल ट्राई टू मूव ऑन विदाउट हेजिंग. Because these companies are designing their policies कि okay fine let's see we'll take the risk, क्योंकि अगर hedging में भी कुछ costs involved होती हैं, अगर they will avoid those costs, so that means they are trying to avoid the hedging criteria. Why? Because they are trying to take the benefit without using any hedging technique. So your multinational company policies also depend whether you should go for the hedging or not for the hedging based on the criteria how much risk lover or risk averse you are. सो इट डिपेंड्स कि आपकी कंपनी की क्या पॉलिसीज हैं और कितना रिस्क लवर या रिस्क टेकर आप हैं या कितने रिस्क अवर्स आप हैं या आपकी कंपनी है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट द हेजिंग पॉलिसीज कैन बी डिजाइंड. We also discussed that apart from all these criteria where you can go for the money market hedging or different types of hedging, you can go for the currency swaps. Now what are the currency swaps that you can decide कि okay fine at this point of time, particular time, we are going to exchange the currencies at this price. So you are basically trying to swap. So you are entering into a contract where you are going to swap the currencies against each other at a particular time period and at a particular price which is your exercise price.
Secondly, we also discussed the parallel loans, which is quite similar with the currency swap. Now, what is currency swap? That if you are exchanging currencies at a particular time, at a particular date, that is currency swap. But if you are going into a contract where you say, okay, fine, we will exchange the currencies at this specified date, at this specified price, but we will re-exchange them at this date. So that means कि एक दफा आपने स्वैप कर लिया और फिर वापस उसको रिवर्स कर दिया. That is re-exchanging them. So at that time you are going for the parallel loan कि आप एक दफा स्वैप कर लेते हैं और फिर उसको रिवर्स कर देते हैं. That means कि आपने एक दफा exchange की and then in the future date you are basically going to re-exchange them. That is called your parallel loan. So all these criteria are called somewhat where we are using the hedging techniques to avoid any type of risk in exchange rate fluctuations. And why we are discussing all these things? Because we are more concerned about the international finance, since we are talking about the different criteria or different method by which you can do your transaction in a safe mode or in a safe way in international finance. Now first thing we have discussed कि जी आप किस तरह से transaction exposure को avoid कर सकते हैं या उसको deal कर सकते हैं. In this particular lecture our main criteria would be to go for managing the economic and translation exposure, which are the two different exposure apart from your transaction exposure. But before going into the details of economic exposure and your translation exposure, we will also discuss some other criteria in which you can basically avoid the transaction exposure. But for this particular lecture, our objective would be to explain how a multinational company's economic exposure can be hedged. तो जब आप ये डिस्कस कर लेंगे कि इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या है, then you will decide कि how you can hedge it, या फिर आप किस तरह से उस एक्सपोजर को डील कर सकते हैं. On the other hand, we will also discuss that how a multinational company can deal with the translation exposure. तो आपके इकोनॉमिक एक्सपोजर और ट्रांसलेशन एक्सपोजर को पहले हम डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिसाइड कि उसकी हेजिंग किस तरह से की जा सकती है. ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की जो हमने बात की, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर इज अगेन पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्सपोजर और इकोनॉमिक एक्सपोजर का सबसेट आप उसको कह सकते हैं कि आप जब ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की बात करते हैं कैश इनफ्लोज की या कैश आउटफ्लोज की जो कि इफेक्ट हो रहे हैं ड्यू टू द एक्सचेंज रेट मूवमेंट, सो हाउ इकोनॉमिक एक्सपोजर कैन हैव एन इम्पैक्ट इन दैट वे कि जिसमें आपके ट्रांजैक्शन एक्सपोजर भी डील करता है. But before going to that, there are some few methods which are left for the hedging, which is basically आप जो decide करते हैं कि transaction exposure को हमने किस तरह से deal करना है. Sometimes a perfect hedge is not available or it is too expensive to eliminate transaction exposure. तो जिस तरह हमने बात की कि आपके पास ये सारी methodologies हैं या फिर आपके पास सारी techniques हैं by which you can go for the eliminating the transaction exposure. But sometimes it happens कि आपके जो perfect hedge होता है या एग्जैक्टली 100% जो आप करना चाह रहे हैं हेजिंग वो पॉसिबल नहीं होती या अवेलेबल नहीं होती या फिर बहुत एक्सपेंसिव होती है. सो टू एलिमिनेट ट्रांजैक्शन एक्सपोजर समटाइम्स इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव टू. To reduce exposure under such condition, the firm can consider, अगर तो आपके जो पिछले हमने सारे मेथड अभी डिस्कस किए कि जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन एक्सपोजर को डील कर सकते हैं, अगर उनमें से कोई भी पॉसिबल नहीं है या आप ये फील करते हैं कि इन तमाम एक्सपोजर्स में बहुत ज़्यादा आपको कॉस्ट्स भी इन्वॉल्व हैं और दूसरा आप उस तरह से 100% हेज नहीं करा सकेंगे, there is a possibility that you can go for or you can reduce exposure under such conditions. The firm can consider first by leading or lagging. तो अगर तो आपकी मनी मार्केट हेजिंग नहीं काम कर रही, ऑप्शंस हेज नहीं काम कर रहा, आपका फॉरवर्ड या फ्यूचर हेजिंग काम नहीं कर रही, सो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि आप या तो करेंसी स्वैप्स यूज कर लें या फिर पैरेलल लोन्स यूज कर लें या फिर यू कैन ऑल्सो गो फॉर द लीडिंग और लैगिंग स्ट्रेटजीज. वी विल डिस्कस देम इन द लेटर स्लाइड्स. एंड ऑल्सो यू कैन गो फॉर द क्रॉस हेजिंग और यू कैन गो फॉर द करेंसी डाइवर्सिफिकेशंस. तो जो आपकी जो हमने ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की बात की थी कि जिसमें बहुत सारे मेथड्स हमने डिस्कस किए फॉर हेजिंग, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर वो तमाम हेजिंग के मेथड्स यूज नहीं हो सकते, यू कैन गो फॉर लीडिंग और लेगिंग एंड क्रॉस हेजिंग या करेंसी डाइवर्सिफिकेशन. अब आपकी लीडिंग या लेगिंग क्या है? लीडिंग और लेगिंग स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व एडजस्टिंग द टाइमिंग ऑफ अ पेमेंट रिक्वेस्ट or disbursement of to reflect expectations about future currency movements. तो आप या तो लीड कर लेते हैं पेमेंट को इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड
या लैग कर देते हैं। लैग बेसिकली होता है प्रीवियस टाइम पीरियड में आप उसको लेके जाते हैं, लैग करते हैं। लीड करना, फॉरवर्ड टाइम पीरियड में आप उसको ले जाते हैं। तो लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रेटजीज की या तो आप उसको प्रीवियस टाइम पीरियड या फिर एडजस्ट कर दें फ्यूचर टाइम पीरियड में। एंड इट इन्वॉल्व्स एडजस्टिंग द टाइमिंग ऑफ द पेमेंट, कि पेमेंट की जो टाइमिंग है या तो उसको प्रीवियस में ले जाएं या फिर उसको फॉरवर्ड में ले जाएं, और डिस्पर्समेंट जो है उसकी टू रिफ्लेक्ट एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर करेंसी मूवमेंट्स। तो आपकी जो टाइमिंग हो रही है पेमेंट की उसको या तो प्रीवियस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दें या फिर फ्यूचर टाइम पीरियड के अगेंस्ट एडजस्ट कर दें, लीड कर लें या लैग कर लें, और उसको आप अपने हेजिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं। एक्सपेडाइट पेमेंट इज रेफर टू एज लीडिंग। अगर आपने एक्सपेडाइट कर दी किसी पेमेंट को तो वो आपकी लीडिंग हो जाएगी। वाइल डेफर कर दें, अगर किसी पेमेंट को आपने रोक लिया या डेफर कर दिया, देन अ पेमेंट इज टर्म्ड एज लैगिंग। तो या तो आप एक्सपेडाइट कर दें, पेमेंट कर दें, एक्सपेडाइट कर दें प्रोसेस को, देन इट इज लीडिंग। अगर आपने डेफर कर दिया पेमेंट को, देन इट वुड बी टर्म्ड एज lagging. So this is also some way by which you can go for the hedging if you are unable to go for the any previous techniques जो कि हमने hedging से related discuss किए हैं अभी। क्रॉस हेजिंग क्या हो सकती है? व्हेन अ करेंसी कैन नॉट बी हेज्ड। जिस तरह अभी हमने बात की थी कि आप करेंसी के लिए फ्यूचर एक्सचेंज रेट के लिए डिफरेंट फ्लक्चुएशंस के लिए हेजिंग करते हैं, तो अगर तो क्रॉस हेजिंग जो नॉर्मल हेजिंग है वो उस किसी भी वे में पॉसिबल नहीं है, देन यू कैन गो फॉर द क्रॉस हेजिंग। अब क्रॉस हेजिंग क्या है? व्हेन अ करेंसी कैन नॉट बी हेज्ड। तो अगर तो एक करेंसी हेज नहीं हो सकती, व्हाट विल बी द केस? In that case, जब आपकी करेंसी की हेजिंग नहीं हो सकती, so there is a possibility another currency that can be hedged and is highly correlated may be hedged instead. तो जिस तरह हमने बात की कि अगर तो आप हेजिंग कर रहे हैं नॉर्मल वे में, तो अगर हेजिंग हो जाती है फाइन एंड गुड, that's the best criteria by which you can go. But on the other hand, if there is a possibility कि हेजिंग नहीं हो सकती, सो व्हाट विल हैपन कि अगर एक करेंसी दूसरे करेंसी के अगेंस्ट हेज नहीं हो सकती, कोई पॉसिबिलिटी नहीं निकल सकती, व्हाट यू कैन डू इज कि आपको हमने जिस तरह पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि आपकी कोरिलेशंस क्या होती हैं, कि दो करेंसी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, कितना सेम वे पे मूव करती है, कितना पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, कितना नेगेटिवली कोरिलेटेड है। एंड इफ यू रिकॉल योर प्रीवियस लेसन्स, तो उसमें क्या था कि आपकी अगर तो पॉजिटिव वन की तरफ मूव कर रही हैं, दैट मीन्स कि बोथ करेंसीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, वेदर दे आर मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन और पॉजिटिव डायरेक्शन, दोनों करेंसीज जो हैं वो सेम वे में मूव कर रही हैं। अगर किसी एक करेंसी में पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो दूसरे में भी उतना ही पॉजिटिव चेंज आ रहा है, अगर किसी एक करेंसी में नेगेटिव चेंज आ रहा है तो दूसरे में भी उतना ही नेगेटिव चेंज आ रहा है। ये तो 100% एग्जैक्ट कोरिलेशन हो गई। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 100% ना हो, 80% हो, 70% हो, 90% हो। इन दैट केस स्टिल आपकी पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन अवेलेबल है। तो अगर तो आप के पास एक करेंसी हेजिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन गो फॉर द अदर करेंसी टू हेज। अब उस केस में क्या हो जाएगा कि आप उसमें कोरिलेशंस चेक करते हैं कि किसी दो करेंसीज के दरमियान में कितनी कोरिलेशन है। अगर तो वो स्ट्रांगली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो करेंसी जो अवेलेबल नहीं है हेजिंग के लिए, आप उसी के साथ दूसरी करेंसी जो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है उसको हेज कर दें, क्योंकि मूवमेंट सेम होने का मतलब यह है कि दोनों में फ्लक्चुएशन सेम है। 70 या 80% कोरिलेशन का मतलब यह है कि दोनों करेंसीज जो है 70 to 80% पॉजिटिवली कोरिलेट कर रही हैं और एक ही वे में मूव करती हैं। तो अगर तो एक करेंसी अवेलेबल नहीं है हेजिंग के लिए, तो जो करेंसी बहुत क्लोजली रिलेटेड है इस करेंसी के साथ, यू कैन चूज दैट वन ऑल्सो। तो आप उसको हेज कर लेंगे और डिसाइड कर लेंगे कि वेदर यू हैव टू गो फॉर इट और नॉट। तो क्रॉस हेजिंग क्या होती है कि अगर आपकी वो पर्टिकुलर करेंसी जिसमें आप हेजिंग करना चाह रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है, देन यू कैन गो फॉर द अदर वन जो कि अवेलेबल है और जो कि स्ट्रांगली कोरिलेटेड है। यू कैन चूज दैट करेंसी एंड यू कैन यूज हेजिंग ऑन दैट करेंसी. Because of that, you can basically trying to hedge yourself against currency fluctuations, since your currency is not available for hedging, so you can take another currency which is quite closely correlated with your currency and you can go for the hedging of that one. So वो आपकी cross hedging हो जाती है. The stronger the positive correlation between the two currencies, the more effective the cross hedging strategy will be. So, जिस तरह मैंने अभी डिस्कस किया कि आपकी जितनी पॉजिटिव कोरिलेशन ज्यादा होगी, इतना इसका मतलब ये कि दोनों करेंसीज सेम वे में मूव कर रही हैं। जितना करेंसी सेम वे में मूव करेंगी, उतना ही पॉसिबल है कि वो
उसी तरह से एक दूसरे को कोरिलेट कर रही हैं, उतना ही स्ट्रांगली कोरिलेट कर रही हैं, और उतनी ही पॉसिबिलिटी है कि क्रॉस हेजिंग जो है वो पॉजिटिवली वर्क करेगी और आप उस करेंसी को हेज करके उतना ही बेनिफिट ले सकते हैं जितना कि आप पिछली करेंसी से ले रहे थे या दूसरी करेंसी से ले रहे थे। जब आपने क्रॉस हेजिंग करनी है तो आपने ये देखना है कि आपकी अपनी जिस करेंसी में आप हेजिंग करने हैं पॉसिबल है या नहीं। अगर नहीं, देन यू हैव टू चूज दैट करेंसी विच इज क्लोजली और पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद योर ओन करेंसी। तो उसमें बेसिकली ये हो जाता है कि आपकी हेजिंग जो है वो वर्क करती है, बिकॉज आप उसमें पॉजिटिवली कोरिलेटेड करेंसीज को उठा के हेज कर लेते हैं, और बेसिकली यू आर ट्राइंग टू हेज योर करेंसी अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट movements. Now the final category or the final criteria by which you can go for the any type of hedging method, that is currency diversification. और currency diversification क्या है कि multinational company may reduce its exposure to exchange rate movements when it's diversify its business among numerous countries. तो जिस तरह हमने पहले बात की थी कि कोक की एग्जांपल ली थी कि कोक की जो डील्स हो रही हैं वो 40 डिफरेंट कंट्रीज में हो रही हैं। से फॉर एग्जांपल 7 अप की आप एग्जांपल ले लें, नाइकी की आप एग्जांपल ले लें, जहां पे आप ये बात करें कि इन तमाम प्रोडक्ट्स की जो डील्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। व्हाट हैपेंस देन, क्योंकि ये डिफरेंट कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज कि वो डिफरेंट करेंसीज में भी डील कर रहे हैं। तो अगर किसी एक कंट्री से उनको लॉस हो रहा है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दूसरे कंट्री से बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा हो। सो वो जो आपका लॉस का फैक्टर है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट के साथ एडजस्ट कर जाएगा और आप बहुत ज्यादा लॉस नहीं फेस करेंगे इन दैट केस, बिकॉज आपने डाइवर्सिफाई किया हुआ है अपने पोर्टफोलियो को या फिर अपनी एक्सपोर्ट्स को। सो करेंसी डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर दें इन डिफरेंट कंट्रीज, बिकॉज जब आप डाइवर्सिफाई करेंगे अपनी एक्सपोर्ट्स को इन डिफरेंट कंट्रीज, सो व्हाट विल हैपन कि अगर किसी एक कंट्री से आपको एक्सचेंज रेट रिस्क फील हो रहा है या कोई लॉस फील हो रहा है, व्हाट विल हैपन कि आप जब फ्यूचर में देखेंगे तो आपको किसी दूसरे करेंसी से या किसी दूसरे कंट्री से जरूर बेनिफिट होगा। दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड करेंसी डाइवर्सिफिकेशन एंड इट इज इन द बेनिफिट के, बिकॉज यूजुअली इट इज प्रेफरेबल कि जब भी आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो आप एक करेंसी डाइवर्सिफिकेशन को फोकस करें। आप अपनी एक्सपोर्ट्स तमाम उन कंट्रीज में भेजें जहां डिफरेंट करेंसीज यूज हो रही हैं, बिकॉज इन दैट केस यू आर ट्राइंग टू hedge yourself against any type of exchange rate movements. तो अगर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगी या मूवमेंट बहुत ज्यादा होगी, सो व्हाट विल हैपन कि आपने अगर डिफरेंट करेंसीज में इन्वेस्ट किया तो यू विल बेसिकली हेज योरसेल्फ अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट मूवमेंट बाय यूजिंग योर करेंसी डाइवर्सिफिकेशन. Currency diversification is more effective when the currencies are not highly positively correlated. तो आपकी जिस तरह अभी हमने पहले बात की उसमें हमने क्या कहा था कि आपने वो करेंसीज उठानी है क्रॉस हेजिंग के लिए जहां पे करेंसीज आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड हो, क्योंकि क्रॉस हेजिंग में क्या था कि अगर आपको एक करेंसी हेजिंग के लिए पॉसिबल नहीं है तो आप दूसरी करेंसी के थ्रू हेज करा लें, और उसके लिए जरूरी बात यह है कि दोनों करेंसीज आपस में पॉजिटिवली स्ट्रांगली पॉजिटिवली कोरिलेटेड हों. However, in this case where we are talking about the currency diversification, अब क्या आपके पास केस है कि आपने बेसिकली इतने ज्यादा कंट्रीज में या इतनी डिफरेंट पोर्टफोलियोज में या इतनी जगह पे एक्सपोर्ट्स करनी है कि आप डिफरेंट टाइप्स की करेंसीज में डील कर सकें. सो व्हाट हैपेंस इन दैट केसेस कि आप करेंसी डाइवर्सिफिकेशन कर लेते हैं. करेंसी डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है कि आप डिफरेंट कंट्रीज में इन्वेस्ट कर देते हैं. जितने ज्यादा करेंसीज में इन्वेस्ट करेंगे या जितने ज्यादा कंट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा. However, इसमें एक मेन पॉइंट जो आपने याद करना है कि करेंसी डाइवर्सिफिकेशन के केस में करेंसीज का आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड होना एक नेगेटिव साइन है, बिकॉज अगर दोनों करेंसीज सेम वे पे मूव करती हैं, या मतलब आपकी जो करेंसी ए है और करेंसी बी है दोनों में सेम टाइप का चेंज आता है, आप 20% एक में चेंज आ रहा है पॉजिटिव और दूसरे में भी 20% पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है. बिकॉज आपने फेस अगर उनका देखा जाए, फेस वैल्यू या डिनोमिनेशन देखी जाए, वो तो ओके फाइन, आपने ले लिया कि पाउंड ले लिया, आपने यूरो ले लिया, आपने डॉलर ले लिया, लेकिन जब आप उनकी कोरिलेशन निकालें, ओके फाइन, दोनों में तीनों में बड़ी स्ट्रांग कोरिलेशन है. अब अगर आपने डाइवर्सिफाइड करेंसी डाइवर्सिफिकेशन यूज करनी है एज अ हेज, तो ये तीनों करेंसीज अगर आपके पोर्टफोलियो में है और आपने कोई इस तरह का एक्सपोर्ट्स की है जो सिर्फ इन्हीं 3 कंट्रीज में है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपने डाइवर्सिफिकेशन को यूज नहीं किया. वजह इसकी ये है कि जब आपके पाउंड में और यूरो में आप बात करें तो इन दोनों में बहुत स्ट्रांग कोरिलेशन है, तो कोई पॉजिटिव चेंज इन यूरो विल ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव चेंज इन पाउंड्स ऑल्सो.
Similarly, there is a possibility कि positive change in dollar is bringing a positive change in pounds also. तो diversification का तो objective ही खत्म हो जाता है, because आप diversification के through ये चाह रहे हैं कि जब आप diversify करें तो आपके पास जो returns आए या फिर जो आपने पेमेंट्स करनी हो वो इतनी डिफरेंट करेंसीज में हो कि अगर एक से आपको बेनिफिट नहीं हो रहा तो दूसरे से बेनिफिट हो जाए। अब अगर आप पाउंड्स की या यूरोस की एग्जांपल लेते हैं, उस केस में क्या होगा कि पाउंड्स और यूरो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, और उस केस में ऑब्वियसली क्या होना है कि अगर पाउंड में चेंज आता है तो यूरो में भी चेंज आता है, तो आपका जो डाइवर्सिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव है वो खत्म हो गया। So if you are trying to hedge yourself against any type of currency loss by using currency diversification, so you have to see कि उन तमाम करेंसी का आपस में पॉजिटिव कोरिलेशन ना हो। Now let's moving towards the second important exposure where we have discussed कि आपका transaction exposure is a subset of your economic exposure, but what is economic exposure? आपने अभी तक in detail पिछले 2 lectures में transaction exposure को deal कर लिया, जहां हमने उससे related numericals भी कर लिए, उससे related हमने तमाम methods भी पढ़ लिए कि आप उसको hedge किस तरह से कर सकते हैं, which is the most important exposure in case of international business and international finance, कि जब आपका business transaction exposure को face करता है, so there is a possibility कि cash inflows और cash outflows इफेक्ट होंगे in नियर फ्यूचर या इन लॉन्ग टर्म, जो भी आपका टाइम पीरियड है, जो आपका मेच्योरिटी टाइम है इन योर ट्रांजैक्शंस। सो जब आप इकोनॉमिक एक्सपोजर की बात करते हैं, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप क्या कर सकते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक एक्सपोजर रिफर्स टू द डिग्री टू विच अ फर्म्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज जो है, जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग आपने पढ़ी हुई है या आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, तो जो आपके जो फ्यूचर में जितने अमाउंट्स आने हैं उन तमाम की जो प्रेजेंट वैल्यू है, वो कैश फ्लोज कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। तो अगर आपने जब आप बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्सपोजर की, दैट इज समवॉट कि जब आपका प्रेजेंट वैल्यू जो है, जो कि फ्यूचर कैश फ्लोज की है, वो इफेक्ट हो ड्यू टू एनी इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स, देन इट इज कॉल्ड योर इकोनॉमिक एक्सपोजर। तो जब आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं, उसमें कोई अगर चेंज आता है ड्यू टू इकोनॉमिक चेंजेस और ड्यू टू एक्सचेंज रेट मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड योर इकोनॉमिक एक्सपोजर। सो नाउ यू शुड बी क्लियर कि ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या है, जो आपके कैश इनफ्लोज या कैश आउटफ्लोज में कोई चेंज आता है ड्यू टू एनी चेंज इन एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स। हाउएवर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक एक्सपोजर, सो इकोनॉमिक एक्सपोजर इज समथिंग वेयर यू आर ट्राइंग टू डील विद द थिंग कि आपने कितना आप एक्सपोज्ड हैं या आपकी फर्म एक्सपोज्ड है टुवर्ड्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज ड्यू टू द चेंज इन एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स। So that is called your economic exposure. Some of these affected cash flows do not require currency conversion. तो जिस तरह हमने पिछले केसेस में बात की थी कि आप करेंसीज को कन्वर्ट करा सकते हैं, however in this case इकोनॉमिक एक्सपोजर में some of these cases or some of these affected cash flows do not require currency conversion. Even a purely domestic firm may be affected by economic exposure if it faces foreign competition in the local markets. तो जिस तरह हमने सेकंड पॉइंट में बात की कि देयर इज सम ऑफ दीज डज नॉट रिक्वायर करेंसी कन्वर्जन, सिमिलरली यू कैन कंसिडर डोमेस्टिक बिजनेस वेयर इट इज फेसिंग फॉरेन कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट। तो डोमेस्टिक मार्केट की जब आप बात करें तो ऑब्वियसली करेंसी कन्वर्जन इन्वॉल्व नहीं हुई हुई, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका डोमेस्टिक बिजनेस जो है या फिर डोमेस्टिक फर्म जो है वो भी एक्सपोज्ड हो टुवर्ड्स इकोनॉमिक एक्सपोजर, सिंस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो विल बी इफेक्टेड बाय ड्यू टू दी एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स। तो आपका जो डोमेस्टिक बिजनेस है दैट कैन बी इफेक्टेड ऑब्वियसली ड्यू टू द फॉरेन कंपटीशन अवेलेबल इन टू योर डोमेस्टिक मार्केट्स। तो उस केस में क्या होता है, क्या ऑब्वियसली आप कुछ नहीं कर सकते कि आपका जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें आपका जो फॉरेन कंपटीशन है वो इंक्रीज हो रहा है और आप एक्सपोज्ड हैं टुवर्ड्स इकोनॉमिक एक्सपोजर। तो आप उस केस में करेंसी कन्वर्जन इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज आप उसमें करेंसी कन्वर्ट करके कुछ पॉसिबल नहीं है। आप उस केस में डील करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज और डिफरेंट मेथड्स। In general, firms with more foreign costs than revenues. So mostly when firms are having more foreign costs than revenues tend to be favorably affected by stronger foreign currencies.
तो अगर तो ऑब्वियसली आपकी फॉरेन कॉस्ट जो हैं वो ज्यादा हैं रेवेन्यू से, सो व्हाट विल हैपन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी जो फर्म है दैट विल बी अनफेवरेबली बी इफेक्टेड बाय द स्ट्रॉन्गर फॉरेन करेंसी मूवमेंट्स। तो आपकी जितनी भी फॉरेन करेंसी मूवमेंट्स होंगी उसकी वजह से आपकी फर्म इफेक्ट होगी अगर आपके फॉरेन कॉस्ट जो हैं वो रेवेन्यूज से ज्यादा हैं। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर जो हमने अभी पीछे बात की तमाम लेक्चर्स में कि आपके ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या है, दैट इज द चेंज इन कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लो ड्यू टू द एक्सचेंज रेट मूवमेंट। सो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर इज अ सबसेट ऑफ इकोनॉमिक एक्सपोजर, क्योंकि इकोनॉमिक एक्सपोजर आपका क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज वुड बी इफेक्टेड ड्यू टू द एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स। तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इफेक्ट हो रही है फ्यूचर कैश फ्लोज की। So in that case there is a possibility कि इकोनॉमिक एक्सपोजर जो है उसमें ट्रांजैक्शन एक्सपोजर भी इन्वॉल्व हो, बिकॉज इकोनॉमिक एक्सपोजर जो है वो आपका मेन सेट है या मेन कंपोनेंट है और आपका जो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है दैट इज सबसेट ऑफ योर इकोनॉमिक एक्सपोजर। But economic exposure also includes other ways in which a firm's cash flow can be affected by exchange rate movements. Economic exposure can be measured by assessing the sensitivity of the firm's earning to exchange rates. So जिस तरह हमने बात की कि present value of future cash flows will be affected by the exchange rate movement, तो जब आप economic exposure की बात करते हैं, so there is a possibility कि economic exposure को आप measure कर सकते हैं by assessing the sensitivity की कितनी sensitive है आपकी जो प्रेजेंट वैल्यूज हैं टुवर्ड्स एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स के सेंसिटिविटी ऑफ फर्म्स अर्निंग्स। तो आपकी प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज कितनी सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स, आप उस सेंसिटिविटी को नोट करके भी अपना इकोनॉमिक एक्सपोजर को मेजर कर सकते हैं। बिकॉज सेंसिटिविटी क्या आपको डिफाइन करेगी कि कितना परसेंट चेंज या कितना चेंज जो है जो आपके प्रेजेंट वैल्यूज में आता है, हाउ मच दैट कैन हैव एन इफेक्ट ओवर द फ्यूचर ऑफ ट्रांजैक्शंस प्लस ड्यू टू द चेंज इन एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स। This involves reviewing how the earnings forecasts in the firm's income statement changes in response to the alternative exchange rate scenarios. तो basically जब हमने बात की present values of future cash flows, so that also involve your income statement जो आपके factors हैं या जो different components हैं उसके, because how you can judge that कि आपका इकोनॉमिक एक्सपोजर है या नहीं है, या फिर फर्म जो है या मल्टीनेशनल कंपनी फेस कर रही है इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या नहीं कर रही है, यू कैन सी बाय फर्म्स इनकम स्टेटमेंट चेंजेस। तो जो आपके इनकम स्टेटमेंट के जो आपके कंपोनेंट्स आ रहे हैं, यू कैन फोकस ऑन देम एंड देन यू कैन डिसाइड कि वेदर द फर्म इज फेसिंग इकोनॉमिक एक्सपोजर और नॉट। So from a US firm's perspective, transaction exposure represent only the exchange rate risk when converting net cash inflows to US dollars or when purchasing foreign currencies to send payments. अगर आप कंसिडर करें फॉर एग्जाम्पल US फर्म को, तो उसका ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या होगा, ओनली व्हेन कन्वर्टिंग नेट कैश या नेट फॉरेन कैश इनफ्लोज for US dollars or when purchasing foreign supplies या foreign currencies to send payments. तो आपका जो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है वो तभी आप एक्सपोज होंगे इन केस ऑफ यूएस फर्म कि जब आपने डॉलर्स में पेमेंट करनी हो या फिर रिसीव करनी हो। सो दैट मीन्स अगर आप यूएस फर्म की बात कर रहे हैं तो यूएस फर्म ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कब फेस करेगी, जब आपने डॉलर्स में या तो पेमेंट लेनी है या पेमेंट देनी है, और उस पेमेंट की रिसीट में या फिर पेमेंट में उस अमाउंट्स की रिसीट में या फिर पेमेंट्स में डिफरेंस आ सकता है या फ्लक्चुएशन आ सकती है ड्यू टू एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स। देन यू कैन कॉल कि यस द फर्म इज बेसिकली एक्सपोज टुवर्ड्स द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। Economic exposure represent any impact of exchange rate fluctuations on a firm's future cash flows. So जिस तरह कैश इनफ्लो और आउटफ्लो की हमने बात की थी, दैट इज अ सबसेट ऑफ योर फर्म इन टर्म्स ऑफ योर फ्यूचर कैश फ्लोज। तो जब आप यूएस फर्म की बात करेंगे तो उसके फ्यूचर कैश फ्लोज में जितना चेंज आएगा ड्यू टू एक्सचेंज रेट मूवमेंट, दैट विल बी कॉल्ड एज योर इकोनॉमिक एक्सपोजर. So corporate cash flows can be affected by exchange rate movements in ways not directly associated with foreign transactions.
Thus, firms cannot focus just on hedging. Their foreign currency payables or receivables must also attempt to determine how all their cash flows will be affected by possible exchange rate movements. So it's not all the time it's not possible कि आप hedging criteria की तरफ ही जाएं, for example in terms of your payables or receivables, but it must also attempt to determine कि किस तरह से their cash flows will be affected by possible exchange rate movements को. एक तो ये हो गया कि आप hedging techniques की तरफ जाएं, दूसरा ये हो गया कि आप देख सकते हैं कि किन scenarios में आपकी firm जो है वो कितना expose हो सकती है towards any type of exposure, whether it is transaction exposure or it is economic exposure. Let's take an example of a multinational company which is quite famous with its name, Nike. Let's take that example and see how it can have or it can face different type of exposure. First of all, Nike's economic exposure comes in various forms. अब economic exposure क्या है कि future जो कैश फ्लोज हैं दैट कैन बी इफेक्टेड ड्यू टू एनी चेंज इन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन. सो नाइकी की जब आप एग्जांपल ले रहे हैं और इकोनॉमिक एक्सपोजर की बात कर रहे हैं, सो इट कैन कम इन डिफरेंट फॉर्म्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, it is subject to transaction exposure because of its numerous purchase and sale transaction in foreign currencies. तो जब आप नाइकी की बात कर रहे हैं, सिंस इट हैज अ डाइवर्सिफाइड टाइप ऑफ एक्सपोर्ट्स पोर्टफोलियो, कि जहाँ पे जब ये एक्सपोर्ट्स करते हैं तो नाइकी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है. व्हाट हैपेंस इन दैट केस कि एक्सपोर्ट्स एक बहुत डाइवर्सिफाइड फॉर्म में हो रही हैं और परचेज एंड सेल्स की अगर आप बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट फॉर्म्स में हो रही हैं. सो दैट मीन्स डिफरेंट टाइप की करेंसीज इन्वॉल्व हैं इन दैट केस. And this transaction exposure is a subset of your economic exposure. तो आप जब बात करते हैं ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की, तो वो इनफ्लोज या वो आउटफ्लोज कैश के जो नाइकी को या तो रिसीव होने हैं या नाइकी ने जो पेमेंट्स करनी है फॉर इट्स सप्लाईज, व्हाट हैपेंस इन दैट केस कि अगर तो उनमें कोई डिफरेंस आना है ड्यू टू एक्सचेंज रेट मूवमेंट, दैट विल बी कॉल्ड द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. However, अगर फ्यूचर इनकम्स में कोई चेंज आना है ड्यू टू एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स, सो उस केस में क्या होगा, दैट विल बी कॉल्ड योर इकोनॉमिक एक्सपोजर. Secondly, in terms of Nike, as we are talking, secondly, any remitted earnings from foreign subsidiaries to US parent. अब क्योंकि Nike एक अमेरिकन कंपनी है, पेरेंट कंपनी इज इन यूनाइटेड स्टेट्स, सो एनी रिमिटेड अर्निंग्स जो भी पेमेंट सब्सिडरीज अमेरिका में भेजेंगे टू देयर पेरेंट कंपनी, सो एनी चेंज इन दैट, अब हम उस चेंज की बात करें, एनी रिमिटेड अर्निंग्स फ्रॉम फॉरेन सब्सिडरीज टू पेरेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट ट्रांजैक्शन एक्सपोजर एंड देयरफॉर रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक एक्सपोजर. तो जब आप नाइकी की बात करते हैं तो बहुत सारी सब्सिडरीज होंगे इन डिफरेंट कंट्री से. फॉर एग्जांपल नाइकी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना भी जा रहे हैं, इंडिया भी जा रहे हैं, पाकिस्तान में भी हैं, इटली भी जा रहे हैं, यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे हैं. अब आप ये समझ लें कि फॉर एग्जांपल नाइकी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो 30 डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे हैं. रिमिटेड अर्निंग्स वो होंगी जो इन तमाम 30 कंट्रीज से पेरेंट कंपनी जो कि अमेरिका में है उनको जाएंगी. अगर तो इन तमाम पेमेंट्स में कोई चेंज आ सकता है ड्यू टू एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स, कैश इनफ्लोज में या कैश आउटफ्लोज में. नाइकी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अमेरिकन फर्म जो कैश इनफ्लोज इनके पास आने हैं फ्रॉम डिफरेंट सब्सिडरीज, अगर उनमें कोई मूवमेंट पॉसिबल है ड्यू टू एक्सचेंज रेट मूवमेंट, सो बेसिकली द फर्म इज फेसिंग ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. अगर फ्यूचर ट्रांजैक्शन में या फिर फ्यूचर में जो आपकी कैश इनफ्लोज होने या आउटफ्लोज होने हैं तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू अगर इफेक्ट होती है ड्यू टू चेंज इन एक्सचेंज रेट मूवमेंट, देन इट विल बी कॉल्ड योर इकोनॉमिक एक्सपोजर. तो अब अगर अपनी ये सेकंड पॉइंट दोबारा से अगर आप देखें तो सेकेंडली एनी रिमिटेड अर्निंग्स, हम उन अर्निंग्स की बात करें जो सब्सिडरीज भेजेंगे पेरेंट कंपनी में, एनी रिमिटेड अर्निंग्स फ्रॉम फॉरेन सब्सिडरीज टू द यूएस पेरेंट also reflect transaction exposure and therefore reflect the economic exposure. क्योंकि अगर तो कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज में कोई चेंज आना है देन यस इट इज योर ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. बट अगर तो फ्यूचर वैल्यूज में भी कोई डिफरेंस आ सकता है ड्यू टू एनी चेंज in exchange rate movements, so that will be called your economic exposure, since the present value of future cash flows are affected by exchange rate movement, and that is called your economic exposure. Third thing, a change in exchange rates that affects the demand for shoes
at other athletic shoe companies. अब जिस तरह हमने नाइकी के प्रोडक्ट्स की बात की तो नाइकी के शूज भी बहुत फेमस हैं. सो अब नाइकी के शूज की बात हो रही है कि a change in exchange rates that affects the demand for shoes at other athletic shoes to companies such as Adidas can indirectly affect the demand for Nike's shoes. तो जब आप बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स की वजह से या एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस की वजह से अगर नाइकी की डिमांड इफेक्ट होती है और एडिडास के जो शूज हैं उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, दैट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्सपोजर. सो अगर एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स की वजह से, जिस तरह कि हमने आपसे अभी भी बताया कि आपने अगर एक्सचेंज रेट्स चेंज हो रहे हैं एंड ड्यू टू द चेंज इन दोज एक्सचेंज रेट आपकी जो फ्यूचर इनकम है वो इफेक्ट हो रही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम इफेक्ट हो रही है, सो दैट मीन्स योर कंपनी इज फेसिंग इकोनॉमिक एक्सपोजर. इस केस में जहां आप नाइकी की बात कर रहे हैं, नाइकी की प्रोडक्ट्स की डिमांड अगर चेंज हो रही है ड्यू टू एनी चेंज इन एक्सचेंज रेट मूवमेंट, दैट मीन्स कि एडिडास की इंक्रीज हो रही है डिमांड और नाइकी की रिड्यूस हो रही है डिमांड. नाइकी फेस कर रहा है इकोनॉमिक एक्सपोजर. What Nike can do is Nike can attempt to hedge some of its transaction exposure, but it cannot eliminate transaction exposure because it cannot predict all its future transactions. तो अगर अब आप नाइकी की आप बात करें तो नाइकी अपना ट्रांजैक्शन एक्सपोजर को थोड़ा बहुत एलिमिनेट तो कर सकता है, बट कंप्लीटली उसको एलिमिनेट नहीं कर सकता ड्यू टू द फैक्ट कि वो अपनी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. So in that case, when you are talking about the Nike, that Nike can face different types of exposure, including your transaction exposure and also including your economic exposure. What happens is कि Nike, due to any change in the demand, due to any change in the exchange rate fluctuation, if the demand of Nike's products are affected, that means it is facing economic exposure. And if in case Nike can change some of its transaction exposure, कि cash inflows और cash outflows में जो change आ रहा है, Nike उसको to some extent hedge कर ले, so there is still a possibility that it cannot eliminate completely the transaction exposure because it cannot predict all its future transactions. Moreover, even if it could eliminate its transaction exposure, it cannot perfectly hedge its remaining economic exposure. So again, when you are talking about the Nike's point of view, if it is possible कि Nike जो है वो अपना transaction exposure to some extent खत्म कर दे, but still there is not possible or it cannot perfectly hedge against its remaining economic exposure. कि वो जो for the time जो आपके cash inflows और cash outflows का जो difference आ रहा है या जो fluctuation आ रही है वो तो Nike में भी उसको overcome कर ले by using some hedging techniques. But again, when you are talking about in terms of economic exposure, there is still some possibility कि 100% उसकी hedging ना हो सके. So it is difficult to determine exactly how a specific exchange rate movement will affect the demand for competitors' athletic shoes and therefore how it will indirectly affect the demand for Nike's shoes. So जब आप बात करते हैं economic exposure की, so again there is no possibility कि आप decide कर सकें या आप predict कर सकें कि future में क्योंकि exchange rate movement की होनी है, so how much demand for the competitor's product will increase. Yeah, how much demand for a competitor product will decrease, due to which your demand for your product or demand for your product increase or decrease. So it is really difficult to determine whether how a specific exchange rate movement will affect the demand for the competitor's product, or it will have also again an impact over the demand of your products. So this is how we call it the economic exposure. कि आप economic exposure की जब आप बात करते हैं, so basically you are trying to deal with the whole component. जबकि आप जब transaction exposure की बात करते हैं, so you are trying to deal with the criteria कि आप किस तरह से जो main component of cash inflows और outflows हैं उनको किस तरह से deal करते हैं in terms of exchange rate movement. लेकिन जब आप economic exposure की बात करते हैं तो it is the broadest picture where you are trying to see कि how the present value of future cash flows can have an impact over the exchange rate due to exchange rate movements.
We also discussed the economic exposure in a way where we said कि जी जिस तरह नाइकी के प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर क्या उनकी डिमांड पे इफेक्ट आ सकता है ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन. लेट कंसिडर अ केस ऑफ एनी मल्टीनेशनल कंपनी वेयर वी कैन सी दैट इन टर्म्स ऑफ द इक्वेशन वे कि आपके पास बेसिकली इक्वेशन के थ्रू आप किस तरह से डिपेंडेंस चेक कर सकते हैं ऑफ वन करेंसी ओवर द अदर इकोनॉमिक एक्सपोजर एंड एवरीथिंग, और किस तरह से एम्पिरिकली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेदर देयर इज एन इम्पैक्ट of exchange rate movement over the financial health of the company or not. So if you consider this example, economic exposure can also be measured by assessing the sensitivity of the firm's cash flows to exchange rate through regression analysis. तो जब आप बात करते हैं इकोनॉमिक एक्सपोजर की, सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू सी कि वेदर द सेंसिटिविटी ऑफ कैश फर्म्स कैश फ्लोज टू एक्सचेंज रेट मूवमेंट. तो जो कैश फ्लो है किसी फर्म की वो कितना इफेक्ट होगी ड्यू टू द एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स. यू हैव टू सी दैट थ्रू रिग्रेशन एनालिसिस. अब रिग्रेशन एनालिसिस क्या है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन डिटेल इन आवर प्रीवियस क्लास कि आप रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू ये चेक कर सकते हैं कि कोई एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर कितना डिपेंड कर रहा है, या फिर चेंज इन वन वेरिएबल कैन ब्रिंग द चेंज इन एनी अदर वेरिएबल एंड हाउ मच चेंज इज पॉसिबल. So if you see this particular example, in this case you are trying to see the sensitivity of firm's cash flow due to exchange rate movements, and in this case you are trying to see through an equation where your PCF is dependent upon when you are talking about the PCF. So this is basically your exposure on the cash flows of the firm and how much it depends on the change in the exchange rate movements. कि आपकी जो present value of cash flows है, how much it can have or how much it is depending upon the exchange rate movements. तो आप अगर इस particular equation की बात करें, so when you talk about this particular example and when you talk about this particular equation, what you can do is you can see कि जी आपकी present cash flow of the present cash flow कितनी effect हो रही है due to the change in exchange rate movement. So you can see this in this way. This is your dependent variable. These are your independent variable. So you are trying to see कि आपकी present cash flow जो है वो कितना depend कर रही है on your exchange rate movements. अब exchange rate movements जो है that is represented with this which is ET, और आपकी जो ये triangle होती है that is percentage change in the exchange rate over the time period T. Secondly, PCF की जब आप बात करते हैं, so that is present cash flow of the present value of cash flow in T time period, and that is percentage change in inflation adjusted cash flow measured in firm's home currency over the period T. So जब आप बात कर रहे हैं रिग्रेशन रन करने की, तो आप चेक करना चाह रहे हैं कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है, हाउ मच इट इज डिपेंडेंट अपॉन द चेंजेस इन एक्सचेंज रेट ओवर द टाइम पीरियड. तो दिस इज बेसिकली योर इकोनॉमिक एक्सपोजर इन अ वे कि किसी भी फर्म का आपने इकोनॉमिक एक्सपोजर अगर चेक करना है, सो यू आर ट्राइंग टू सी कि कितना एक्सपोज्ड है कोई फर्म कि वो उसके जो कैश इनफ्लोज हैं या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज जो है फ्यूचर कैश फ्लोज कितना चेंज हो सकती है ड्यू टू द चेंज इन एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स. और उसको आप न्यूमेरिकली या एम्पिरिकली जब आप उसको रिग्रेस करते हैं या चेक करते हैं, सो दैट विल बी डन थ्रू रिग्रेशन एनालिसिस व्हिच इज बेसिकली एन एनालिसिस इन व्हिच यू आर ट्राइंग टू सी कि आप एम्पिरिकली किस तरह चेक कर सकते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर कितना डिपेंडेंट है. अब इस केस में आपके पास ये जो ए नॉट आ रहा है, दिस इज बेसिकली योर इंटरसेप्ट. दैट मीन्स जहां से आपकी वैल्यू स्टार्ट होती हैं, और आपके पास जो A1 आएगा, ये वैल्यू जो आएगी, दिस इज बेसिकली स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन. मेन पॉइंट इसी चीज का है कि जो आपका A1 है, दिस विल बेसिकली कैलकुलेट कि आपके पास कितना चेंज आ रहा है ए की इस वैल्यू में, ET की वैल्यू में, विच इज बेसिकली चेंज इन एक्सचेंज रेट,
कि आपका कितना चेंज है जो कि आपका इफेक्ट कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज को, एंड दैट मैग्नीट्यूड विल बी डिसाइडेड विद द कोएफिशिएंट दैट इज A1. तो A1 इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज या स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन, जो कि बेसिकली आपको बताएगी कि कितना चेंज इन ET विल ब्रिंग दिस मच चेंज इन PCF. तो आपका हाउ मच परसेंट में अगर आपने लेना है तो हाउ मच परसेंट एक्सचेंज रेट मूवमेंट, कितने परसेंट एक्सचेंज रेट मूवमेंट विल ब्रिंग द चेंज इन द प्रेजेंट कैश फ्लोज ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी. तो जब आप ये बात करते हैं कि इकोनॉमिक एक्सपोजर कितना है किसी फर्म का, सो दैट कैन बी एनालाइज्ड बाय यूजिंग द एम्पिरिकल वे और एम्पिरिकल टेक्निक विच इज कॉल्ड रिग्रेशन एनालिसिस, के जिसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि किसी फर्म में ड्यू टू एक्सचेंज रेट मूवमेंट कितना चेंज आने का चांस है, या फिर आप ये कह लें कि ड्यू टू एक्सचेंज रेट मूवमेंट इकोनॉमिक एक्सपोजर कितना हो सकता है उस फर्म का. दैट इज बेसिकली कैलकुलेटेड थ्रू एन एम्पिरिकल वे. So let's review today's lecture कि आपने आज के लेक्चर में क्या क्या हमने चीजें डिस्कस की. फर्स्ट थिंग वी हैव डिस्कस्ड कि जी आपके पास अगर ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर को आप डील करने के लिए अपार्ट फ्रॉम दी प्रीवियस मेथड्स जो हमने बात की, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो फॉर क्रॉस हेजिंग, जिसमें आप बेसिकली ये ट्राई करेंगे कि अगर आपकी एक करेंसी हेज नहीं हो सकती तो दूसरी करेंसी को आप हेज कर लेंगे. बट इन दैट केस अगर आपकी क्रॉस हेजिंग की आप बात कर रहे हैं, सो क्रॉस हेजिंग के केस में आपके पास आपकी जो कोरिलेशन है बिटवीन टू करेंसीज वो पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि एक करेंसी जितना पॉजिटिवली मूव करेगी दूसरी उसी के साथ उतना ही पॉजिटिव मूव कर रही है. सो दैट मीन्स बोथ हैव पॉजिटिवली कोरिलेशन या कोरिलेटेड हैं. सो इन दैट केस अगर आप क्रॉस हेजिंग यूज करें सो दैट विल वर्क, बिकॉज अगर आप एक करेंसी को छोड़ के दूसरी करेंसी यूज कर रहे हैं एज हेजिंग टेक्निक तो दोनों का रिलेशनशिप एटलीस्ट पॉजिटिव और स्ट्रांगली पॉजिटिव होना चाहिए, सो दैट इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सचेंज या इफ यू आर ट्राइंग टू यूज द अदर करेंसी, सो वो उस करेंसी का भी मूवमेंट सेम हो विद योर प्रीवियस करेंसी जो आप पहले यूज करना चाह रहे थे जिसकी हेजिंग पॉसिबल नहीं है. On the other hand, not only the cross hedging is possible, there is also possibility कि आप currency diversification use कर लें. तो जब हमने बात की currency diversification की, so currency diversification is possible in a way if you are trying to see कि आपने जितने के जितने exports किए हुए हैं they are diversified, so that जो payments आनी है आपके पास वो तमाम की तमाम diversified हैं, different currencies में आ रही हैं, and then you can hedge ड्यू टू दैट, बिकॉज अगर आपको किसी एक करेंसी से लॉस हो रहा है तो दूसरी करेंसी से पॉसिबली आपको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट मूवमेंट में भी उसमें इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो. अब जब आपने क्रॉस हेजिंग की बात की तो वी डिस्कस्ड कि आपके पास कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव होनी चाहिए. However, when you are talking about the diversification, currency diversification, then we discussed कि currency diversification will work if correlation between the two currencies जो कि आपने diversify किया हुआ है अपना पोर्टफोलियो के different countries में इन्वेस्टमेंट की हुई है या different countries में आपने exports किए हुए हैं. The only possible way for diversification is कि if these currencies are having a negative correlation between each other. वजह क्या हो सकती है? बिकॉज अगर तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है तो डाइवर्सिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा. इफ दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड विद ईच अदर, सो दैट मीन्स कि अगर एक में प्रॉफिट होता है तो दूसरे में लॉस है, दूसरे में अगर लॉस है तो तीसरे में आपको प्रॉफिट हो रहा है. सो उन तमाम की अगर आपस में नेगेटिव कोरिलेशन है विद ईच अदर, सो इट विल बेसिकली बेनिफिट यू इन अ वे इफ यू आर ट्राइंग टू यूज करेंसी डाइवर्सिफिकेशन एज अ हेजिंग मेथड. तो डाइवर्सिफिकेशन के वे में यू मस्ट ट्राई टू फाइंड दोज करेंसी हु हैज द रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, while if you are going for the cross hedging where the hedging for one currency is not possible and you are trying to use another currency for the hedge, in that case you have to see कि आपके पास positive correlation होनी चाहिए among the currencies. पॉजिटिव कोरिलेशन के केस में बेसिकली क्या होगा कि पॉजिटिव कोरिलेशन में क्योंकि दोनों करेंसी सेम वे में मूव कर रही हैं, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर एक हेज नहीं होती तो दूसरे को हेज कर लें, बिकॉज दोनों की मूवमेंट्स तो सेम है. So it won't give you any big difference or it won't basically harm you or harm the health of your financial health of your company, because कि अगर एक करेंसी अवेलेबल नहीं थी आपने दूसरी को हेज कर लिया और वो दूसरी करेंसी जो कि पॉजिटिवली कोरिलेटेड है विद योर करेंसी.
So these were some other method by which you can diversify or cross hedge the currencies, and you are trying to use different hedging techniques. On the again we also discussed different types of exposures where we said कि आपके पास transaction exposure हो सकता है. अगर आपके पास transaction exposure हो रहा है so that means आपके पास cash inflows और cash outflows they are exposed towards the movements in exchange rates. However, on the other side, we also discussed the criteria कि आपके पास economic exposure भी possible है. अब economic exposure क्या है? Economic exposure is something where you are trying to see कि आपकी present value of the future cash flows कितनी affect हो सकती हैं due to the exchange rate movements. और जब आप present values of future cash flows की बात करते हैं तो again cash flows are involved with each other or with different currencies. So again the cash inflows and cash outflows are also a point of concern for your business. So that means जब आप इकोनॉमिक एक्सपोजर की बात कर रहे हैं तो आप एक ब्रॉडर पिक्चर की बात कर रहे हैं, एक ब्रॉडर सेट की बात कर रहे हैं जिसका एक कंपोनेंट आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोजर भी है. तो जब आप इकोनॉमिक एक्सपोजर को डील कर रहे हैं, आपकी कंपनी फेस कर रही है इकोनॉमिक एक्सपोजर, सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू हेज अगेंस्ट द वे वेयर यू आर ट्राइंग टू हेज कि अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो इफेक्ट हो रही है ड्यू टू एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स. सेकेंडली, आप जब बात करते हैं ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की, सो इट इज अ सबसेट ऑफ योर इकोनॉमिक एक्सपोजर. वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि अगर इकोनॉमिक एक्सपोजर को आपने चेक करना है कि आपके पास बेसिकली जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उसमें चेंज कितना इम्पैक्ट ला सकता है ऑन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ योर मल्टीनेशनल कंपनी, या फिर आपके प्रेजेंट कैश फ्लोज के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज पे कितना इम्पैक्ट ला सकता है. सो यू कैन यूज द एम्पेरिकल मैथडोलॉजी बाय विच यू कैन सी कि कितना इम्पैक्ट पॉसिबल है, और आप रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू विच इज एन एम्पेरिकल टेक्निक यू कैन डिसाइड कि आपने बेसिकली हाउ मच डिपेंडेंस ऑफ your present value of cash flow has over the change in exchange rate movement over the time period, whatever time period is involved. तो जब आप इकोनॉमिक एक्सपोजर की बात करते हैं so you can also test it by using the empirical techniques. So till now I guess it is enough for today, and in our next lecture we will discuss it further, the economic exposure, and we will also discuss the translation exposure and how we can hedge them. Till then, thank you and Allah Hafiz.